Hello, welcome to this physics video. In today's video, we are going to learn about the reason why the diamond sparkle in the light. So the reason is there, it is total internal reflection. Now what is this total internal reflection, or either in short form it is TIR. So what does it stands for? So simply it is total internal reflection is there. So let us understand what is this total internal reflection. For this I'm going to suppose that there is this interface. So this interface is going to separate the two point media. So over here this is the rarer media. Here it is rarer medium, while this is going to be denser medium. This is denser medium. Okay, now in the denser medium that we have kept, we are having any object, or there is a point P, or there is the source of light. Okay, now over here the ray of light which is going to travel from here, so that I'm going to mark. Let us suppose that a ray of light which falls perpendicularly, okay, along the normal on this interface. So we are known that along the normal, if any ray of light will fall, so it will not bend, it will go straight. Okay, there it is going straight. If any ray of light that it is going to fall at an angle over here with the normal, so just to check that this is that here it is going to fall at an angle. So what will happen when it will change its media? So it will bend away from the normal. Okay, there we are looking that it is bending, is having with that light ray. Now as this ray of light, the third ray of light, it falls at a greater distance. So over here the ray of light which is falling at this position, so this bends along the surface of this denser media, or that interface. Okay, so therefore how much is this time, this angle of bending? There is 90 degree, refraction is of 90 degree. So this angle at which this ray has fallen and the angle become 90 degree, so this angle is known as critical angle. Okay, it is what? Critical angle. So just to check over here, one important definition that we are going to know over here, it is critical angle. So what is critical angle? It is the angle of incidence at which angle of refraction becomes angle of refraction, or in short term R becomes 90 degree. Okay, so what is this critical angle? It is the angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree. Okay, so in short form you can write that R equal to 90 degree. So we are looking over here that as this third ray, it is at more distance from this perpendicular ray, so therefore uh, it falls at such an angle that the ray bends along the surface, and it is having that bending of 90 degree. Now when a ray of light will fall more farther from it, जब कोई ray of light इससे भी दूर जाकर के फॉल करती है, तो जैसे जैसे ये रे ऑफ लाइट आगे की तरफ को, मतलब कि दूर फॉल करती जा रही है, वैसे वैसे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एट दिस पॉइंट वी आर लुकिंग दैट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्योंकि क्या बोला आपको, जिस जैसे जैसे ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस नॉर्मल से, इस परपेंडिकुलर रे से दूर फॉल करती जाएंगी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये एंगल छोटा था, उससे बड़ा ये एंगल बना। ठीक है, अब ये एंगल उससे भी बड़ा हो गया, तो ये एंगल क्या बोला था? क्रिटिकल। तो ये क्या, ये कौन सा एंगल हुआ? क्रिटिकल से भी बड़ा हो गया। दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सो नाउ ओवर हियर when any ray of light it falls at an angle greater than critical angle, so it do not refract, ये बाहर नहीं जाएगी। What will happen? It will bounce back in the same media.
ठीक है, ये उसी मीडियम में सेम एंगल, जिस एंगल से वो गई थी उसी एंगल से ये वापस भी हो जाती है। ठीक है, सो देयरफॉर वी आर लुकिंग ओवर हियर कि ये जो रे है इसमें क्या हुई, रिफ्लेक्शन हुई। ठीक है, और कैसी रिफ्लेक्शन हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि जिस मीडियम से वो लाइट गई थी उसी में वापस आ गई। ठीक है, कब वापस आई, व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज ग्रेटर देन दैट क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दैट व्हाट इज टी आई आर, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देन वी कैन से दैट द फिनोमेना, व्हाट इज दिस, इट इज द फिनोमेना of bouncing back of light, bouncing back of light into the same media, same medium, when it is incident at an angle greater than critical angle, IC, C for critical। ठीक है, तो जब ये क्या कहता है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल के ऊपर इंसिडेंट होता है। ठीक है, so this phenomena is known as total internal reflection. But there we should to learn about of essential condition for this TIR. Essential condition, important. Maximum time it is going to be the question in the paper. Essential condition for TIR, total internal reflection के लिए क्या जरूरी है, essential condition. So first point, there are the 2 points which is required for it. First point, angle of incidence must be greater than critical angle. पहली बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट ओवर देयर, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, यू विल फाइंड दैट ये जो लाइट रे थी ये कौन से मीडियम से किस तरफ जा रही थी, ये डेंसर से रेयरर में जा रही थी. ठीक है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर दैट दैट द लाइट should travel from denser to rarer. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दिस देयर आर द 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल के ऊपर लाइट रे फॉलो होनी चाहिए, एंड सेकंड पॉइंट लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए. ठीक है, नाउ लेट अस टू डिराइव ओवर हियर द रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल एंगल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, सो फॉर दिस पर्पस लेट अस टू कंसिडर दिस वन. ये मेरे पास जो फर्स्ट मीडियम है लेट इट बी दिस एयर मीडियम. ठीक है, तो इसको मैंने ए सपोज कर लिया. ठीक है, एयर मीडियम, दिस इज ए, वाइल दिस इज एनी मीडियम. ठीक है, तो मीडियम मतलब कि ये हमारे पास ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सो एनी अदर मीडियम इट कुड बी. जो बी है, जो डेंसर मीडियम है, वो हमारे पास यहाँ पर बी मीडियम मैंने मेंशन किया. ओके, नाउ हाउ डू वी राइट this critic that of refractive index. So according to Snell's law, the ray of light it is going from that of uh, from B to A. Is this? ठीक है, B से A की तरफ जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है. सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू दैट साइन ऑफ द रिफ्रैक्शन. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्नेल्स लॉ. एंड हाउ डू वी राइट दिस वन, सो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में भी इसको नोट डाउन किया जा सकता है. सो दिस इज एज refractive index of this A medium upon my refractive index of B medium. Okay, now over here if we are supposing that first medium that it is air medium, so it is for air or vacuum that we are having, this refractive index is taken to be 1, while this is second medium, so let it is n over here. Simply what I did, I have considered that the first medium
So it is air or vacuum, therefore its refractive index is 1, while for a second medium it is n, the denser medium which is over there. Therefore how can I write this one? Therefore it will become as 1 by n is equal to sine I by sine r, or either we can interchange them. So when we will interchange them, so it will become sine r by sine I. Okay, now use the condition when angle of incidence is equal to critical angle, so then angle of refraction will be 90 डिग्री. ठीक है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने कि वो एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है 90 डिग्री. सो पुट दिस वन ओवर हियर. सो वी गेट दैट n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन में साइन ऑफ आई की जगह क्या लिखना है, क्रिटिकल एंगल आई सी. ठीक है, सो दिस इज साइन 90 वैल्यू इट इज 1 अपॉन में साइन ऑफ आई सी. ओके, सो देयरफॉर we get that refractive index, how it is related with the critical angle, it is 1 upon sine of the critical angle. Refractive index is that one. Okay, so this is an important relation which we come to know. So that could be the derivation in the exam, or how this refractive index is related with the critical angle. These are the factors, so which is generally asked in the exams. So it is factors affecting critical angle. So how this is going to depend, critical angle. So you must to see over here, this refractive index is inversely proportional to critical sine of the critical angle. ठीक है, मीन्स अगर क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, और अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा. जैसे एग्जांपल लेते हैं कुछ, जो डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, इट इज़ 2.42. ठीक है, तो इसका जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, दिस इज़ नियरली 24 डिग्री. ठीक है, इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 24 डिग्री का होता है. नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे सपोज दिस इज गोइंग टू बी वाटर. ठीक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिस इज 1.33. ठीक है, एंड वी आर गेटिंग ओवर देयर इट्स क्रिटिकल एंगल इज नियरली 48 डिग्री. ठीक है, 48 डिग्री के पास इसका क्रिटिकल एंगल होता है नियरली. नेक्स्ट इज देयर दैट इट इज़ ऑफ ग्लास. तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1.5, और इसका जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज़ नियरली 42 डिग्री. नाउ जस्ट टू चेक दैट वन, इज दिस रिलेशनशिप वैलिड इन दिस वन और नॉट. ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा. ठीक है, तो हमारे पास चेक दिस वन. ओके, सो देयर यू विल फाइंड ओवर हेयर क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा किसके लिए, फॉर विच इट इज़ मैक्सिमम. सो यू विल फाइंड दैट क्रिटिकल एंगल इज़ 48 डिग्री फॉर वाटर. सो नोट देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम आउट ऑफ दिस 3 एग्जाम्पल. ठीक है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल किसका है, वो वाटर का. सो इज दिस रिलेशनशिप गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस गिवन. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच वी कम टू नो. ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर हमारे पास. नाउ सेकंड फैक्टर दैट यू विल फाइंड ओवर है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारे पास क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है. ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल भी लिखा गया. सो इट मीन्स वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स, ये इसके साथ इन्वर्स है, इसके साथ भी इन्वर्स है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी कम टू नो. एंड द थर्ड थिंग ओवर देयर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, ये टेम्परेचर के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वो कम डेंसर होगा, और हमारे पास जहाँ पे टेम्परेचर कम है वो ज़्यादा डेंसर होता है. ठीक है, नाउ सिमिलरली ओवर देयर इट इज़ इन्वर्सली टू दैट्स क्रिटिकल एंगल. इट मीन्स टेम्परेचर और क्रिटिकल एंगल आपस में क्या बने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ओवर देयर दैट रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर. Okay, so this is all from my today's video. So stay tuned with the videos, and in the next video we will have the discussion which is regarding to the application of total internal reflection. Thank you for watching this video.